श्रुति, कैसे हो आप? बढ़िया। ऑलरेडी लुकिंग लाइक एन ऑफिसर बाय द वे। सो श्रुति, आई होप आप दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, राइट? हाँ। हाँ। सो लेट्स नॉट मेक इट लाइक एन इंटरव्यू, ठीक है? थोड़ा बात करते हैं, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे अभी कमिंग स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रुति, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग recommended. थैंक यू सो And मच। that's really amazing. We all are very proud of you. So let's start with कि आपका inspiration क्या था? Like, what was your inspiration behind joining the forces? So basically, in class 12, was that movie, Gunjan Saxena. So Oh, okay. actually, from that movie, I got really like inspired by that Gunjan Saxena ma'am, and about my like interests and hobbies. So I thought that like this is the perfect career, and that is the thing I really wanted to do further. That's why I joined the Which course. that's amazing, Shruti. So which force do you really are like into कि मुझे इसी particular force में जाना है? I'm actually into Air Force because ma'am is also in the Air Force, and I wanted to join like in the fighter branch, but I couldn't clear the CPSS test recently. But yes, still I'd love to join the forces in any branch. That's amazing. So tell me one thing. So this was your first attempt, NDA? No, no, it was my third attempt. In the first, I couldn't clear the written, and in the second, I got screened out, and this time I got cleared. That's amazing. So, tell me, what were the challenges you faced as a newcomer, like a new person who's starting the preparation of NDA? So the main problem like in the written exam because NDA is all about like UPS exams is all about whole subjects, every subject in. So basically I am from the PCM background and history, geography and polity, these subjects were like totally out of the syllabus for me. And I don't like them so much also. So it was like really out of box for me. But yes, I have to manage all of them at the same time, so it was difficult for me in class 12. Like after the class 12, I have given the exam. I couldn't clear it. So it was very difficult that time because I didn't get time enough time to prepare about all those subjects and for the GAT specific. But after that, like for about 6 months preparation, I was like, okay, I've cleared the second second written, and after that the SSB was kind of not, I would say a kind of tough. It's different because this kind of testing is not done like in our school days. They don't do psychological tests or anything like that what we do in SSB. So it was kind of different, not tough, I would say, but yes. That's amazing. Which school background are you from, by the way? I have completed my class 12th from Jawahar Navodaya Vidyalaya, which is a central government school. CBSE, right? Yes, CBS. That's amazing. That's amazing. So you are basically a science student, right? Yes. So is there anything like extra, like something you have done for the preparation of GAT, of like especially the history geography portion? For the history geography portion, I'd say like you can take totally help from the internet, and like you can take help from the previous year questions because the thing is that the geography part or the polity part is same all through that years, all through that PYQ, they're repeating the same questions just by reframing the questions. So you can take help from them. PYQs are the like life-saving part of that, GAT especially. And English, I can say that you can prepare English from either newspapers. Like reading is the key for English because most of the thing like in English it comes from the vocab part. Grammar is important, but vocab builds the whole GAT portion of the English. So you have to focus on the reading part so you can perform well there. And other like current affairs and all, you can get yourself updated by newspaper or any other channels like YouTube channels, lectures. You can take help from them. वैसे श्रुति, आप डिफेंस बैकग्राउंड से आते हो, लाइक योर फादर और एनीबॉडी इज इन डिफेंस? I'm comfortable with that. दैट्स अमेजिंग.
सो पर्टिकुलरली कोई स्टडी रूटीन है श्रुति जो आप फॉलो कर रहे थे? Usually, like this time I used to go to a library, and from there it was a schedule. I have divided my time, like for this much time for the GAT part, this much time for the maths, for the mock. So I've divided my whole like day in parts, because every subject needs time, and if you're not given like equal times or like some time to each subject, it's hard. It's kind of hard. So I have divided my just the whole schedule in some parts, and like not so much. I don't study like 12, 13 hours. No, like it was quite normal. 8 hours max, not more than that. That's amazing. So let's talk about the preparation a little. Like जैसे कि आपका first of all you took the mock classes, right? So सबसे बड़ी बात है जो आप जो प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे आपका मैथ्स का प्रिपरेशन हो गया या जिस भी चीज का आपने प्रिपरेशन किया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वर द एग्जैक्ट चैलेंजेस यू वर फेसिंग अ लॉट? एक्चुअली मॉक में सबसे बड़ी दिक्कत है कि पीवाईक्यूज जो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन लाइक रिसेंटली जब हमने स्टार्ट किया पेपर देना 2023 फर्स्ट एंड 2023 सेकेंड एंड थर्ड, लाइक 2024 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो द थिंग इज दैट कि द पैटर्न ऑफ द पेपर इज क्वाइट चेंजिंग लाइक इन द रिसेंट ईयर्स, कि वो पैटर्न काफी चेंज है, क्योंकि जो क्वेश्चन है अब आ रहे हैं वो थोड़े लाइक जेई बेस्ड आ रहे हैं, कुछ जेई मेंस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लस लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, and the time is say like 2:30, and the questions are exactly same 120, but the thing is that the question जो है वो lengthy आने लगे, तो हाँ it is quite sometimes challenging, because you have to practice all through that previous ones, previous mock papers and previous year questions, तो वहां तो आपके 60-70 बन जा रहे हैं, 70-80 क्वेश्चंस, लेकिन जब आप एक्चुअली स्टेप इन करते हो एग्जाम में, तो वहां नहीं बनते हो, क्योंकि वहां पेपर काफी चेंज हो रखा है, और फिर जो पीवाईक्यूज वो लोग रिपीट कर रहे हैं, लेकिन लाइक बेसिक कुछ चैप्टर्स है वो रिपीट कर रहे हैं, and they have started doing something which is actually like the मतलब वो जे एडवांस वाले बहुत समय से कर रहे हैं, they're like merging 2-3 chapters along, like ज्योमेट्री के 2-3 चैप्टर्स जो कि को रिलेट कर रहे हैं, तो उनको मर्ज करके वो क्वेश्चन को लेंदी कर रहे हैं, तो द थिंग इज दैट कि वहाँ मैथ्स में वो चैलेंजिंग हो जाता है कि मतलब आपको न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चंस एक्चुअली इस बार पूछे जाने हैं, उस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, तो वहां पर थोड़ी दिक्कत होती है, प्लस जीएटी में इट्स ऑल अबाउट कि like revision is the key. अगर आप पढ़ रहे हो तो it's not that much syllabus like to like talking about the geography or science तो अगर कोई पीसीएम बैकग्राउंड का है तो it was clear कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो इजी आती है, नॉर्मल रहती है, और बायोलॉजी इज लाइक 4-5 लेक्चर्स लेंथ, 3 hours का लेंथ हो तो 3-4-5 लेक्चर्स में बायोलॉजी ऑल डन, बट यू हैव टू रिवाइज इट ऑल, लाइक रिविजन होना चाहिए, क्योंकि they are not asking direct questions in any of the like maths or GAT portion, they are not asking like directly, वो पीवाईक्यूज में भी लाइक चेंजमेंट कर रहे हैं, कुछ कुछ चेंज कर दे रहे हैं, कुछ और पूछ ले रहे हैं, एग्जाम्पल्स काफी वाइड रहे, क्योंकि नाउ वी हैव डिफरेंट लाइक सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ एनीथिंग, तो वो एग्जाम्पल्स के साथ बहुत यूज कर रहे हैं, तो दैट इज टफ, बिकॉज बुक्स में क्या है कि वो लिमिटेड है, वो उतना ही दे रखा है उन लोगों ने, तो वहां पर प्रैक्टिस के लिए थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि सोर्स कम। अंडरस्टैंडेबल। सो श्रुति एक बात पूछती, जैसे कि आप जैसे क्लास वगैरह करते थे, आप प्रशांत सर के मैथ्स के लिए पर्टिकुलरली हेल्प के लिए जाते थे, राइट? सो कितना लगता है कि जो आपको सर ने सिखाया, जो टेक्निक सर ने सिखाया, वो कितना हेल्पफुल था एग्जाम के लिए? लाइक टॉकिंग अबाउट दी मॉक जो कि हम मैंने लिए थे, मॉक टेक्स्ट जो लिए थे वो काफी हेल्पफुल थे, क्योंकि मुझे जितना याद है जो लास्ट जो टेस्ट थे जितने भी मैंने दिए थे वहाँ, मुझे एग्जैक्ट सेम मार्क्स आए हैं उसमें उसमें रियल एग्जाम में, तो दैट वाज क्वाइट गुड, क्योंकि मुझे मतलब एक तो प्रैक्टिस करने को मिला, जो मैं कह रही थी कि वो सोर्सेस काफी कम है जो कि रिलेटेबल है, क्वेश्चंस लाइक सेम पैटर्न वाले, जो सेम पैटर्न वाली मैं बात कर रही थी, क्योंकि पीवाईक्यूज जो है वो पहले के है, वो प्रैक्टिस करने से अभी की आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, क्योंकि वहां आप 70 क्वेश्चंस लगा ले रहे हो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में है वो question। और फिर जब आप एक्चुअल दे रहे हो तो आपसे 50 ही हो रहे हैं, तो वहां से पता चल गया था कि इस पोर्शन पे मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे बहुत कुछ पता, जैसे मेरी कोनिक्स जो थी वो वहाँ मैं अटेम्प्ट नहीं करती थी कोनिक्स, लेकिन फिर जब मैंने मॉक टेस्ट दिए तो मुझे दिखा कि हाँ कोनिक्स अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, फिर मैंने किया तो मैं थोड़ा इंक्रीज कर पाई अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट एग्जाम में, तो उसमें बहुत हेल्प, और मोराल भी बहुत बूस्ट होता था, क्योंकि रैंक अच्छी आ जाती थी मॉक्स में, तो फिर वो सही था।
मॉक में है काफी। दैट्स ग्रेट। नहीं, मॉक टेस्ट तो नो डाउट देना बहुत जरूरी है, बिकॉज जितना आप दोगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी, राइट? तो एक और चीज पूछना था, जैसे कि आप मॉक टेस्ट वगैरह जो आपने प्रशांत सर के यहाँ से करवाए या कहीं से भी किए हैं, तो कितना लगता है कि कितना आपको वो क्वेश्चंस एग्जाम में भी ऑलमोस्ट, कभी कभी होता है ना कि थोड़े कॉमन आ गए, सेम सिमिलर पैटर्न्स के बहुत आते हैं, कितना लगता है कि थोड़ा बहुत आपको मिला हो जो वहां पे भी मिल गया हो, जो आपने यहाँ पे किया हो मॉक में? आई गेस मुझे जितने दिखे थे, मुझे तो 4-5 क्वेश्चन स्ट्रेट थे, मतलब सीधे, लाइक एवरीथिंग सेम, लाइक इवन नंबर्स आर आल्सो। तो वो 4-5 क्वेश्चंस तो थे। बाकी द मॉक हेल्प मी अलॉट, लाइक आई कैन से 75% इट हेल्प, क्योंकि मेरी स्ट्रक्चर पता चल गया था, और बाकी के 25% इज ऑल अबाउट द हार्ड वर्क एंड द प्रैक्टिस ऑफ माइंड, बट द स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। सो 75% आई से कि वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उन लोगों ने स्ट्रक्चर जो क्लियर कर रखा था, तो उससे मुझे पता था कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, ताकि वो मेरे बन जाए। दिक्कत क्या होती है कि जब आप टेस्ट देने जाते हो तो आपको पता नहीं है कि कहाँ कौन से क्वेश्चंस मुझसे बनने हैं, कौन से नहीं बनने हैं। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट ये लाइक प्रैक्टिस करके जाते हो, तो आपको पता होता है कि हाँ, इस क्वेश्चंस को मैं अप्रोच करूंगी, इन चैप्टर्स को स्पेसिफिकली, तो आई विल गेट द आंसर। सो दैट रियली हेल्प अ लॉट। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में आप अटकते थे या कुछ भी, सो डिड यू हैड अ कॉन्वर्सेशन विद प्रशांत सर एवर? हाँ, like after the mock, like first second mock, he called us also, like many, like my friends also. He called and talked about the weak parts of the, like मेरा weak part क्या है, कौन से subjects मुझे tough लगते हैं। तो I shared कि हाँ सर, मेरी GAT थोड़ी weak है, क्योंकि पीसीएम वाली ज्योग्राफी में थोड़ी दिक्कत है। He suggested कि हाँ, उस पर प्रैक्टिस कर लेने से हो जाएगा। मैथ्स he suggested कि you should focus on those subjects or those chapters, sorry, जो कि जहां से तू ज्यादा क्वेश्चंस कर सकती है, और जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं ज्यादा। तो that helped me about, and also he suggested me to like add some chapters also, कि हाँ, इस चैप्टर से क्वेश्चंस ऐड अप हो रहे हैं, या फिर लाइक अब हो सकते हैं, क्योंकि मतलब एक एंटिसिपेशन भी होता है कि अब नेक्स्ट ईयर में कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जैसे कैलकुलस है और ये सारे चैप्टर्स, तो उन्होंने वो सजेस्ट किए। हम मोर और लेस कह सकते हैं कि प्रशांत सर ने थोड़ा मतलब स्ट्रैटेजीज बनाने में थोड़ी हेल्प की है, राइट? स्ट्रैटेजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैथ्स में क्या है कि प्रैक्टिस सब कर रहे हैं, सबने की होती है, लेकिन दिक्कत क्या है कि स्ट्रैटेजी वो दिक्कत कर जाती है कि उन्हें कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ताकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए प्लस एक्यूरेसी के लिए, कि कौन से सही हो सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स का क्या, मतलब चलो हमने मैथ्स की बात की, एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का क्या, जैसे जीएटी हो गया या तुम्हारा साइंस का, वैसे तुम आप साइंस बैकग्राउंड के हो श्रुति, तो इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, जैसे यू मेंशन्ड बिफोर एज वेल। व्हाट अबाउट जीएटी, लाइक जीएटी का कहाँ से आपने प्रैक्टिस किया? GAT, like for the English part, I didn't do such like preparation from any other like channel and all. I was just saying कि reading is the key. Like I just do reading, like I read some books, or ऐसे भी like even you're reading some articles on the like phone, on the internet or any other site, it will help. It will going to help कि वो वहां से सारी vocabs आती है पहले तो, और उसके बाद आपको वहां से ग्रामर भी बहुत सीखने मिलता है, क्योंकि जो ग्रामर पोर्शन इस बार ही आया है या फिर पिछली बार ही आया था, तो इट इज नॉट समथिंग लाइक होल ग्रामर थिंग, इट वाज लाइक कि द नॉर्मल बेसिक कन्वर्सेशन यू हैड इन योर लाइक डेली लाइफ, और द आर्टिकल्स यू रीड, तो वहां से जो इडियम्स आते हैं या फ्रेजेस जो आते हैं, वो वहां से रिलेटेड हो जाते हैं। एंड अबाउट द करंट अफेयर्स पार्ट, तो current affairs, they're actually doing कि they're mixing some geography and current affairs along with. So they're asking the geographical questions related to the current news and all. So about the current affairs, I just use some YouTube channels, and newspapers important है, क्योंकि वहां से ही मतलब वहां के जो आर्टिकल्स है वहां से आते हैं कुछ कुछ न्यूज। एंड अब टॉकिंग अबाउट दी साइंस एंड ऑल, तो वो तो हो गया था, फिजिक्स केमिस्ट्री वो तो हो वो तो गया था। आपके लिए बायो प्लस इज पॉइंट हो सिंपल। गया था। हाँ, बायो सिंपल बिकॉज 10th तक ही आती है, तो वो भी पढ़ी रही थी, लेकिन बस रिवीजन करना था। और ज्योग्राफी ये सब सारी चीजें यूट्यूब से ही की थी ज्यादा, और एक आध बुक एंड ऑल जो थी। Great. अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगी, तो आप सिर्फ एनडीए दे रहे हो या फिर और कोई एग्जाम्स भी अभी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर? आई हैव जस्ट गिवन इंडियन CUET एग्जाम। जस्ट एनडीए? Oh, great.
So now let's talk about the most interesting part, I guess, that is SSB. Everybody waits for कि यार SSB का कुछ tips मिल जाए, पता चल जाए कुछ. So how was your experience SSB का? First of all, कहाँ था आपका SSB? मेरी एसएसबी थी 3 एसएसबी गांधीनगर में। गांधीनगर. हाँ, गांधीनगर थी। तो एसएसबी is very like one of the good memories of my life. Actually, coming from Navodaya, it is quite similar there, like the SSB and like this. And when I was in Navodaya, it was quite similar. But SSB ki thi, like all 5 days you have to compete, and I'd say you have to show your OLQ everywhere, like True. every task, anything you do. And first thing है कि SSB is all about experience. Experience है, मस्ती है बहुत. And 5 days, you will cherish that like forever your life. So it was very good experience. क्योंकि last time नहीं हुआ था, तो I was a little bit scared, and but last time से थोड़ा कम depression था, क्योंकि मेरी last attempt थी. I was like, नहीं, it's okay. I'll focus more on the PPDT वाला part, first stage वाला part, and this time I like definitely get to experience the 5 days. 5 days SSB. But I was very chill and calm this time. तो इस बार आपका माइंडसेट ऐसा था कि बस मुझे 5 दिन रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट? मुझे 5 दिन रहना है, मुझे एक्सपीरियंस लेना है, मुझे जितना आता है मैं उतना परफॉर्म करके जाऊंगी. एक्चुअली मेरे दिमाग में बहुत पहले पिछली बारी एक चीज की दिक्कत थी कि मुझे लग रहा था आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड दैट मच, कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने जियो पॉलिटिक्स नहीं पढ़ी, मैंने ये नहीं पढ़ा. लेकिन दिस टाइम आई वाज लाइक, जितना आ रहा है मैं उतना बोल के आऊंगी. सिंपल है. मैं उतना टेंशन नहीं ले रही इस बार, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, जो आपको आता है यू डोंट गेट टू लाइक शो दैट ऑल्सो, अगर तुम टेंशन में हो. तो इस बार ही था कि नहीं, जितना मुझे आता है आई बी कॉन्फिडेंट इन दैट, आई कीप माई पॉइंट एंड enjoy whatever it is. That's the So you really enjoyed the 5 days over there. enjoy. So did you make any friends, like good friends over there, जिनका भी जो भी recommended हुए? हाँ, मेरी मेरी बैच की थी, हम लोग मेरे बैच से 2 लड़कियां हुई थी, तो वी आर वेरी, वी हैव बीन टू How? बेंगलोर along. Oh, that's great. How many of you got recommended in that batch? We got like 14 got recommended. 14. That's amazing. That's Like really last, amazing. same. ओके. सो एक और चीज श्रुति मुझे जाननी है कि जैसे आपने कोई एक्स्ट्रा, जैसे आप बोल रहे हो कि लास्ट टाइम आप स्क्रीन आउट हो गए थे, राइट? सो इस बार एसएसबी से पहले समथिंग लाइक स्पेशल यू डिड फॉर योर प्रिपरेशन बोल लो, या कुछ भी माइंडसेट, जैसे माइंडसेट आपने बोला कि दिस टाइम आई वाज प्रीटी मच लाइक आई वांट टू लाइक जो भी जितना आता है उतना बोलूंगी, तो उससे ज्यादा नहीं, वो मैं भूल जाऊंगी. आई वांट टू लाइक बी अ लिटिल Yes, yes. calmer दिस टाइम, राइट? सो इस बार कुछ ऐसा था जो आपने स्टडी के मामले में या प्रिपरेशन के मामले में यू टुक सम एक्स्ट्रा मेजर्स जो लास्ट टाइम शायद कहीं ना कहीं मिसिंग थी? Like last time I focused more on the GD and lecture it, like the preparation part. I used to write like notes and all and everything, but I don't practice that much. Like I haven't practiced lecture it, doing lecture it, or GD. I haven't participated, but I've written everything in my notebook. Like this time I have focused more on the participation, and like for the psychology test, I have like taken very care of psychological tests about my stories. I often used to send my stories to my friends so that they can check my story, like is it good or not. So I have focused on the practice part of the psychology, and for the GD and the lecturate, I focus more on like listening the YouTube channels which discuss about the recent news and all, and the newspapers I use sometimes, not that much, but I have focused on that so that I'll get some opinion about the current issues or anything going on in the country or in international. That's amazing. So, is there any tips, tricks, कुछ भी suggestion जो आप अभी जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं उनको देना चाहते हो? For the SSB, एसएसबी हो, रिटर्न हो, कुछ भी, whoever is in preparation, like who aspire to be an army or defense officer someday, तो उनको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स प्रिपरेशन के लिए बोल लो, या एसएसबी के लिए कुछ आप देना चाहोगे? the first most important tip is like first तो अपने पे believe रख, because when you will believe yourself, you will be able to put more efforts. Because like about my experience, I for the written specifically, I was like, हाँ written तो मेरा हूँ.
तो दैट हो जाएगा, कम along with that mindset कि हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, अगर हो जाना है तो इसका मतलब मेहनत करनी पड़ेगी. Or for the SSB, the self belief is also very important, because when you believe yourself, confidence खुद ही आएगा और you'll perform better. Because in the GD or any other group task, when you not believe yourself, you'll not be able to give your points, क्योंकि वहां बहुत भीड़ होती है, 14-15 लोगों का बैच हो. तो in the SSB or in the written, you have to believe yourself. Then comes after the consistency, that you have to be consistent all through that days, like not कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, आज बहुत ही पढ़ लिया, आज 2 बजे तक पढ़ लिया. And discipline, I'd say that third is discipline, because like in the written, people say like first written clear हो जाए उसके बाद SSB पे जाएंगे, but when you reach for the SSB interview, they'll ask like what is your routine, so how you are managing like your days. Like for me, I was a dropper, so I have to tell everything कि sir ऐसा ऐसा करना था. I can't say कि I am going to a college, so this time is like confined to my college. And so the thing is that you have to be like very disciplined, not very disciplined, but you should indulge some activities in your daily life, like some sport or anything you do. Because they'll ask what things you do, like in your free time. So, and they want a person who is versatile, like not a person who is only sitting on his desk and reading and reading and reading. They're not asking for that, because in the GTO itself, the student, like for based on my experience, all of those recommended, they're very lively. They are very lively, they're confident, they're into sports, and they're so like क्योंकि दिक्कत क्या होती है, जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं और जो कुछ में और पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो शांत हो जाते हैं, थोड़ा काफी शांत हो जाता है. ग्रुप्स में उन्हें मैनेज करने में भी दिक्कत होती है. वहां जब आप एसएसबी में पहुंचते हो तो 5 दिन जो आप यू हैव टू मेक फ्रेंड्स, तो वहां पर वो ग्रुप में बहुत हेल्प करता है. कोई भी ग्रुप टास्क होता है, दे सपोर्ट यू देयर. अगर आप फ्रेंड्स बनाते हो तो वो स्किल्स जो होती है वो थोड़ा इंटरेक्शन से आती है. तो आईड से कि इंटरेक्शन बढ़ाओ, लाइक जैसे डिफेंस करियर में आ रहे हो तो इंटरेक्शन बढ़ाओ, ताकि तुम कॉन्फिडेंटली इंटरेक्ट कर पाओ, क्योंकि तुम्हें कहीं ना कोई स्टेप पे तुम्हें इंटरेक्ट करना पड़ेगा वहां लोगों से. एंड I'd say you should start focusing on the English part, because specifically in the Air Force, everything will be conducting in English. Everything. एक्चुअली आई वाज अबाउट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन एज वेल कि काफी लोग का ये क्वेश्चन होता है कि एसएसबी में इंग्लिश, पर्टिकुलरली English इंग्लिश का कितना वैल्यू है. very स्पोकन well. इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, एवरीथिंग. लाइक चलो रिटन इंग्लिश तो आई अंडरस्टैंड, बट स्पोकन इंग्लिश का मतलब Can ड्यूरिंग द इंटरव्यू. because talking about like our experience, this people who are coming from South, they are good या in quite good in English. So there is a build up confidence in them that they will perform better than us. Like वो हो जाता है. इवन हमारे माइंडसेट में भी होता है कि दे आर फ्रॉम साउथ, पक्की इंग्लिश अच्छी होगी उनकी, और फिर वो अच्छा बोलेंगे हमसे. ऐसे इन बिटवीन श्रुति, कैन यू लेट मी नो कि घर वालों का क्या रिएक्शन है? And they're quite happy about this. Like after मैं मुझे बताने को नहीं दिया था उस समय, फोन चला रहे थे, फिर मैंने दूसरे दिन बताया तो my father was very sure कि उसका कॉल नहीं आया तो she is recommended. And वो पहले ही खुश थे, क्योंकि मैंने बोल किया था if I'll not if be able to call you, then think that I'll be recommended. I'm recommended. So they're happy. तो फिर मैंने दूसरे दिन उन्हें बताया कि हाँ. अमेजिंग. ये थोड़ा मुझे एक और चीज जानना है कि लाइक काफी लोगों का क्वेश्चन होता है, जैसे आप थोड़ा सिविलियन बैकग्राउंड से हो, राइट? लाइक हाँ. आपके घर वाले सब लोग डायरेक्टली फोर्सेस से नहीं है, सो हाउ व्हाट देयर डिसाइड किया, उनको बताया यू वांट टू जॉइन फोर्सेस, लाइक उनका क्या पर्टिकुलर रिएक्शन था आपका? काफी पेरेंट्स काफी पॉजिटिव होते हैं कि नहीं बेटी मेरी फोर्सेस में नहीं जाएगी, हाँ सो तो वैसा like रिएक्शन एक my एक्सपेक्टेड ही father, रहता है. my father is he's normal, he's pretty okay up with that. But my mother, she's like, okay, okay, let's do these things first, and then we'll decide कि okay join करना है कि नहीं करना. So, but I was very sure, and like by my confidence, she was like, हाँ join तो करके रहेगी ये, कुछ नहीं मानने वाली है. तो I was like कि okay, I'll take care of me, and those things you're thinking about, कि वही आउटकम नहीं है. इट्स नॉट अबाउट कि वही होने वाला है. तो यू हैव टू लाइक think all of like the opportunities that courses will give and all. तो मैंने बताया कि इतनी सारी चीजें हैं, and बहुत डिफरेंट है. प्लस एक तो
मुझे मेरी पर्सनालिटी को काफी सूट करता है, मुझे बहुत पसंद है वो सारी चीजें जो वहाँ होती है, जो वहाँ करने मिलेगी. तो I'll get to live all those my 7 years which I've lived in my school in a better way, ना like level up way. So मैं वो opportunity miss नहीं करना चाहती थी. तो मैंने बताया कि I'm very passionate about this and they're okay with that. Now they're okay with अच्छा, अमेजिंग। तो फाइनली घर वाले भी कन्विंस हो गए, राइट? that. तो सबसे ज्यादा किस चीज के लिए एक्साइटेड होगी ताकि मुझे सक्सेस में जाके पर्टिकुलरली ये करने को मिलेगा? लाइक एवरीबॉडी गिव्स दैट पैट्रियोटिक वाला आंसर, बट Hmm. लाइक समथिंग डिफरेंट व्हिच यू आर मोर एक्साइटेड अबाउट कि हाँ मुझे ये करने को मिलेगा फोर्सेस में जाके। Like वहाँ की जो ट्रेनिंग पीरियड है, I'm सबसे ज्यादा excited about those 4 years. Like it is hard, it is very tough, I know. But once you'll get there, first the thing, the very first thing in my mind is that कि after completing those 4 years in the NDA and or further in the IMA ऐसे, you'll be a whole different personality. You'll be strong, like physically, mentally, you'll be strong. Financially, you'll be independent from that. There, like at very young age, you'll be financially stable. And plus all of those perks subside है पहले तो. First the thing is that you're saying the patriotism वो भी है, लेकिन the pride you'll get from there, the respect you'll get from there, plus a healthy personality, a confident personality you'll get from there. तो वो कहीं और नहीं मिलने वाला. तो जो लाइफस्टाइल, जो माइंडसेट वहां से बना के वो लोग भेजेंगे 4 सालों के बाद, तो दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी सिविल बैकग्राउंड. तो दैट आई रियली चेरिश अबाउट इंडिया एंड ऑल एवरीथिंग, कि वो वहां बहुत नहीं है. That's amazing. So, see, one last thing I want to ask, okay, looking back, is there anything you would like have done differently in your preparation or any other areas where you felt like you could have improved a little more? Yes, like in the written exam specifically, I thought कि अगर मैंने और मेहनत की होती तो I could have scored much better, because this time the GT paper was not about the English part. English was pretty okay, it was quite easy, but like in the current affairs or history part, it was not so much difficult. So I thought कि I could have worked more upon those sections, so I could have done more better, like I could have scored more than 600 or something like that, because I'm capable of that. I thought I was capable of that, but the thing is that I didn't strategize is so much like efficiently, because geography वाला जो part था, तो मैंने suggestions लेके ऐसे ऐसे करना है and all. मुझे खुद का ही आइडिया ये था कि क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आती थी पहली, और जब मैंने पढ़ाई की, इस बार ही पढ़ाई की, लास्ट टाइम मुझे ज्यादा इसका गिल्ट था क्योंकि मैंने ज्योग्राफी पढ़ी ही नहीं लास्ट. इस बार मैंने पढ़ा, लेकिन लास्ट टाइम मैंने पढ़ा ही नहीं था, थोड़ा सा भी नहीं. क्या मतलब नहीं, ये नहीं, मैं फिजिक्स से मार्क्स लाऊंगी, मैं केमिस्ट्री से मार्क्स लूंगी, लेकिन मैं इससे नहीं ला पाऊंगी मार्क्स. तो अगर मैंने उस समय पढ़ाई की होती, या फिर मैंने जीएटी की जो पढ़ाई है, मैथ्स मैंने पढ़ाई लाइक नॉर्मल ठीक, लेकिन जीएटी की जो पढ़ाई की मैंने, मैं अगर और उसको मेहनत कर पाती तो वो और बेटर हो सकता था. सेकेंड थिंग आइड से कि मुझे अपनी फिजिकल फिटनेस पे और ध्यान देना चाहिए था. Last time I was very active about my physical. Like after the SSB, I got screened out. मैंने सब छोड़ दिया, physical ध्यान देना and all. अभी now I got a medical TR of overweight. So now I'm thinking I shouldn't have given up on that. So physical fitness is very important, because that will eventually help you in the GTO, in the SSB. Because IO is not very important for the GTO, because on my experience I have done only 5 IOs. So, but you have to prove yourself in the PGT and HGT tasks. So you have to be at some time, like at some level, you have to be physically fit. And वो confidence भी देता है, क्योंकि वहां अगर सब fit हैं और आप fit नहीं हो तो that is quite challenging. You should be physically fit. That's the thing. And English पे ध्यान दो. English is very important everywhere. अच्छा, अच्छा, एक क्वेश्चन आपको उधर से मुझे याद आया, वो है कि जैसे आपने बताया कि लास्ट टाइम जब आप स्क्रीन आउट हो गए थे, राइट, एक्सट्रीमली डिमोटिवेटेड, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा होता है कि थोड़ा इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, तो हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड थ्रू द एंटायर प्रोसेस, एंटायर जर्नी? The first thing is कि I was demotivated, but मेरे दिमाग में था कि okay, I have gotten a chance to improve myself. So first take that thing in a positive way, because if you're getting screened out from somewhere, there must be some reason. First, the thing is that for the 5 days, straight 5 days after my SSB, I focused where
आई गेट रॉन्ग, लाइक कहाँ मैंने गलती कर दी, कहाँ मैंने अपने आप को ज्यादा शो ऑफ नहीं किया। तो मैंने उन चीजों को निकाला कि हाँ ये चीजें थी जो कि मैंने इस बार अच्छे से नहीं की, और अगली बार मुझे इस पर मेहनत करनी। तो और मेरे दिमाग में एक और चीज थी लास्ट टाइम स्क्रीन आउट जब मैं हुई थी, कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे उतने रिटर्न टाइम, लाइक इट वाज नॉर्मल, जस्ट लाइक 20-30 मार्क्स अबव फ्रॉम द कट ऑफ। तो मेरे दिमाग में मेरिट का भी टेंशन था कि ओके हो जाएगा तो फिर मेरिट रह जाएगी। तो फर्स्ट थिंग दैट की टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, फोकस मोर ऑन द रिटन पार्ट, क्योंकि इवेंचुअली मेरिट इज इम्पोर्टेंट। तो मेरिट इज इम्पोर्टेंट, तो और फिर वो कॉन्फिडेंस भी देता है जब आप अपेयर करते हो एसएसबी के लिए। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ ठीक है, एसएसबी मैनेज कर लो रिकमेंडेशन तक, तो वो वाले मार्क्स मैनेज कर लेंगे तेरे। तो रिटर्न पे मेहनत करो, कॉन्फिडेंस देगा। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि मतलब अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक तो गोल है तुम्हारा, पहले तो वही चीज है कि तुम्हें अगर करना है तो करना ही है, किसी तरह करना है। और डिफेंस इज ऑल अबाउट नॉट गिविंग अप अंटिल लास्ट। तो just focus on your goals, set schedules. Schedule is very important. अगर आप schedule और strategic प्लानिंग नहीं करोगे तो फिर वो दिक्कत करती है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने जो गलतियां की और फिर इस टाइम क्या डिफरेंस लाना है, क्या डिफरेंस आप ला रहे हो, क्योंकि प्रोडक्टिव तभी होगा जब आप लास्ट वाली चीजों को रिपीट ना करें। अगर वो वापस वही रिपीट करोगे तो फिर वापस आप स्क्रीन आउट या जो भी होगा, जो भी कुछ होगा, हो सकता है वो हो जाए। तो आपको ध्यान देना है कि आप लास्ट टाइम से क्या डिफरेंट कर रहे हो और किस तरह से उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, क्योंकि फॉर दिस टाइम आई डिडंट गेट इनफ टाइम फॉर दी एसएसबी। लास्ट टाइम 3 मंथ्स मिले थे, लेकिन इस बार नहीं मिले। इवन रिटर्न के लिए इस बार काफी कम टाइम मिले थे, क्योंकि हमारी एसएसबी में टाइम चला गया था 3 महीने उधर। फिर हमारे एसएसबी के बाद टाइम जाता है ट्रैवलिंग एंड ऑल, तो वी डिडंट गेट सो मच टाइम टू प्रिपेयर फॉर दी रिटर्न। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट कि कैसे टाइम को मैनेज कर रहे हो, और टाइम भी मैनेज करना है प्लस खुद को भी मैनेज करना है। तो उतना टाइम मत लो खुद को वो मोटिवेट करने का, जस्ट पुट स्केड्यूल, स्टिक टू इट। और Amazing. That's amazing. So, Shruti, is there anything from your end which you want to add on for anything? चाहे वो प्रिपरेशन के लिए हो, चाहे वो मोटिवेशन के लिए हो, या कुछ भी जो आप खुद की तरफ से बोलना चाहते हो। फर्स्ट थिंग I'd like to add कि for the NDA or for the any exam, first make a proper plan. Planning is important. I'd suggest कि planning is very important for any exam, क्योंकि it's not about कि just निकाल लेना है, पास हो जाना। अगर कर ही रहे हो तो अच्छे से मेहनत करो, और फिर प्लानिंग के साथ करो, अच्छे से मेहनत करनी है और फिर अच्छे से मार्क्स स्कोर करने हैं। सेकेंड आइड से कि be confident what you know, like if your English is weak, especially for the students who are worried about English and maths, those two subjects, like students are most concerned about कि मेरी maths नहीं हो रही, मेरी English नहीं हो रही। तो first be confident about that, and the third thing is that you only have like practice in your hands कि तुम क्या कर सकते हो। Nobody will be going to help you in SSB, कि वो तुम्हारे लिए ट्रांसलेटर तो नहीं बन सकता वहाँ, like, or nobody can write your paper, so you have to do it yourself. So practice is very important, because time is very less, like time is same for all, and you have to attempt more and more questions in the written. And for the SSB, like work on your personality, like be joyful, like be interactive with people, and so try to communicate with people around, like don't be an introvert all the time, because there you'll get to experience like a bunch of people interacting with like each other, and you have to participate in that. And plus you have just not to have to participate in that, you have to like keep your point in the middle, like you have to speak up, you have to present your point in front of everyone else in the lecturate, to be confident, knowledge बढ़ाओ अपनी, क्योंकि knowledge will always help, वो confidence भी देगा, plus confidence तो देगा ही तुझे, और इंग्लिश में भी काफी हेल्प करेगा। तो अगर तुम्हारी नॉलेज तुम वर्क कर सकते हो तो नॉलेज पे वर्क करो। Newspaper, if you can add, like it is not so important, just have to get through all the like current news and all, you can add that. That's great. So, thank you so much, Shruti, for sharing your experience with us. It was really inspiring. And I'm very sure whatever, like your journey and your experience, whatever you have shared, is going to help a lot of people who are preparing, like who are starting their preparation for MBA, right? So I wish you all the very best for your future, and I'm excited to see you in the uniform. Thank you so much.
Okay, it was really, really nice talking to you, and thank you so much. Thank you so much, ma'am.